نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ مشاورت جاری ہے، اتحادیوں کو بھی وزارتیں دی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، منشاء اللہ بٹ، رانا مشہود احمد خان کو وزارت دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر میں سے کسی ایک کو وزیر صحت، بلال یاسین کو وزیر خوراک اور خلیل طاہر سندھو کو وزیر اقلیتی امور بنانے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی میں سے سید حسن مرتضیٰ اور علی حیدر گیلانی کا نام بھی وزارت دیے جانے کے لیے زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق جگن محسن کو بھی وزیر بنانے پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حلف کا معاملہ، وکلاء نے گورنر پنجاب کی جانب سے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف نہ لینے کے معاملے کو آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وکلاء نے گورنر پنجاب کی جانب سے نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے حلف لینے کے معاملے میں تاخیری حربے استعمال کرنے کو خلاف آئین قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر پیر سید کلیم خورشید نے کہا ہے کہ گورنر کا وزیر اعلیٰ سے حلف لینا اس کی آئینی ذمہ داری ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سید طیب محمود جعفری نے کہا ہے کہ گورنر نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے کسی صورت انکار نہیں کر سکتے۔ گورنر پنجاب کے پاس پارلیمانی نتائج کو مسترد کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ گورنر پنجاب انویسٹیگیشن ادارہ نہیں کہ وہ ووٹوں کے نتائج کے حوالے سے تحقیقات کرے۔ آئینی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ گورنر جو ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن الیکٹڈ چیف منسٹر کے اوتھ لینے کا پابند ہے، اور اس سے ڈیویشن جو ہے وہ فرسٹریشن آف کانسٹیٹیوشن اور وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ گورنر صاحب کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکٹڈ جو چیف منسٹر ہے اس کا حلف لینے سے انکار کرے، یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، اور یہ اس آئینی ذمہ داری کو اوائڈ کرنے کے لیے خود کو انویسٹیگیشن ایجنسی میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ سابق ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل پنجاب چودھری زبیر احمد فاروق ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ گورنر کا نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینا آئینی ذمہ داری ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف نہ لینے پر گورنر پنجاب کے خلاف آئین کی آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ شیگان اعجاز چدڑ ایڈوکیٹ نے کہا کہ گورنر حلف لینے کا پابند ہے، گورنر کی عدم موجودگی میں اسپیکر حلف لے گا، اسپیکر بھی دستیاب نہ ہو تو صدر پاکستان کسی کو حلف لینے کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔ گورنر کو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب پارلیمنٹ نے، جب اسمبلی نے ایک وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے تو ان کو کسی طرح سے اختیار نہیں ہے کہ اس کے حلف سے انکار کریں۔ وہ حلف لینا ان کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے، اور ہر صورت ان کو حلف لینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ گورنر کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر جو منتخب ہو گئے ان کا حلف نہ لے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر گورنر اویلیبل نہیں ہے تو پھر اسپیکر لے، اور اگر اسپیکر بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر صدر جو ہے کسی کو نامزد کر دے، جس طرح چیف جسٹس کو نامزد کیا جا سکتا ہے کہ وہ حلف لے لے۔ سینئر وکلاء کے مطابق گورنر پنجاب کسی صورت نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے انکار نہیں کر سکتے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ گورنر کا عہدہ آئینی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان فریق نہ بنے اور نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لے کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ پنجاب میں تقرر اور تبادلوں کی نئی لہر، پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ محمد حامد جان کا تبادلہ کر دیا گیا، وفاقی حکومت رپورٹ کا حکم دیا گیا۔ اسپیشل سیکرٹری ایوان وزیر اعلیٰ سکرات امان رانا اور PSO2 وزیر اعلیٰ حیدر علی بھی وفاق کو رپورٹ کریں گے۔ ڈی جی ایکسائز محمد علی رندھاوا کو پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری کابینہ ڈویژن گلزار حسین شاہ کو OSD بنا دیا گیا۔ گلزار حسین سانحہ مری کے وقت کمشنر راولپنڈی تھے۔ پنجاب میں تقرر تبادلوں کی نئی لہر، پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ محمد حامد جان کا تبادلہ، وفاقی حکومت رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ اسپیشل سیکرٹری ایوان وزیر اعلیٰ سکرات امان رانا اور PSO2 وزیر اعلیٰ حیدر علی بھی وفاق کو رپورٹ کریں گے۔ IG پنجاب راؤ سردار علی خان نے شہر کے 5 افسران کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے، اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ IG پنجاب نے 5 DSPs کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے PSO2 CCPO لاہور DSP کاشف ڈوگر کو تبدیل کر کے DSP انویسٹیگیشن 1 انویسٹیگیشن برانچ پنجاب تعینات کر دیا ہے۔ DSP مستحسن شاہ کو SDPO لوئر مال سرکل لاہور، SDPO لوئر مال سرکل DSP محمد عمران کو تبدیل کر کے DSP سیکیورٹی ٹو 90 شاہراہ قائد اعظم لاہور اور SDPO باغبان پورا سرکل لاہور یعقوب آوان کو تبدیل کر کے خدمات ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ کے سپرد کر دی گئیں۔ DSP پریزن اسکواڈ لاہور طارق ظفر کو SDPO باغبان پورا سرکل لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔
शुगर के मरीजों के लिए नई मुश्किल। सर्विसेज अस्पताल में शुगर के मरीजों को इंसुलिन की फराहमी बंद कर दी गई। शुगर सेंटर में 2 माह से इंसुलिन की किल्लत है। अस्पताल इंतजामिया ने इंसुलिन की फराहमी को ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से मशरूत कर दिया। सर्विसेज अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले शुगर के मरीज ख्वार हो गए। अस्पताल के शुगर सेंटर में 2 माह से इंसुलिन की किल्लत है, जिसकी वजह से मरीजों को इंसुलिन की फराहमी मुकम्मल बंद हो गई है। शुगर सेंटर में इलाज के लिए रोजाना 250 मरीज आते हैं। इनमें अक्सरियत ऐसे मरीजों की है जो इंसुलिन खरीदने की सकत नहीं रखते। हॉस्पिटल में आए 2-3 दिन हो गए, किसी किस्म की कोई भी मेडिसिन नहीं अवेलेबल। जो भी मेडिसिन लेनी है मुझे बाहर जाना पड़ता है। 3 माह से इधर आ रहे हैं, ना तो कोई शुगर की दवाई इधर से मिल रही है और सारी मेडिसिन हम बाहर से ले रहे हैं, सब बाज़ार से लाते हैं हम, और ये पता नहीं मेडिसिन इधर जो आती है हमें मिलती नहीं। हॉस्पिटल आया हुआ था, रोज़ा मैंने रखा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से मैं इधर पहुंचा हूं। इधर मैं जब भी आता हूं तो मुझे 2-2.5 माह 3 माह गुजर गए हैं, मुझे इंसुलिन नहीं ये दे रहे। कल मैंने टाइम लिया है तो इन्होंने बोला कि सुबह आ जाना, ठीक है। मैंने बंदे से पूछा कि इंसुलिन मिलेगी, उसने कहा नहीं। मैंने कहा मेडिसिन मिलेगी, उसने क्या पता नहीं। इंसुलिन की किल्लत पर एमएस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आमिर मुफ्ती ने सारा मलबा ड्रग टेस्टिंग लैब पर डाल दिया। कहते हैं इंसुलिन खरीद चुके हैं, बस लैब रिपोर्ट का इंतजार है। वो आ जाए तो इंसुलिन की फराहमी शुरू हो जाएगी। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। महकमा प्राइमरी हेल्थ की लापरवाही। सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई अद्वियात के लेबॉर्ट्री टेस्ट ताखीर का शिकार। ड्रग टेस्टिंग लैब में अद्वियात के सैकड़ों नमूने तज्जिए के मुंतज़िर हैं। अस्पताल लैब रिपोर्ट न आने के बायस खरीदी गई अद्वियात इस्तेमाल करने से कासिर है। महकमे प्राइमरी हेल्थ की संगीन लापरवाही की वजह से सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई अद्वियात के लेबॉर्ट्री टेस्ट ताखीर का शिकार हो गए। महकमे प्राइमरी हेल्थ के ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई अद्वियात के सैकड़ों नमूने तज्जिए के मुंतज़िर हैं। इन अद्वियात के नमूने टेस्ट न होने की वजह से अस्पताल इन अद्वियात को इस्तेमाल नहीं कर रहे। खरीदारी के बावजूद DTL रिपोर्ट न आने की वजह से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात मैसर नहीं, जिससे मरीज शदीद परेशान है और महकमे प्राइमरी हेल्थ की संगीन लापरवाही का भुगतने पर मजबूर हैं। राना टाउन स्कीम 1 के रिहायशी कई रोज से ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से सरापा एहतजाज हैं। पीने को पानी नहीं, वापटा वाले बात सुनने को तैयार नहीं। मजीद क्या कहते हैं अब्दुल्ला मारूफ से जान लेते हैं। अब्दुल्ला बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राना टाउन स्कीम नंबर 1 पे, जहाँ पे इलाका मकीन जो है मर्द व ख़वातीन ट्रांसफार्मर की अदम दस्तयाबी की वजह से सरापा एहतजाज हैं। आज कई रोज़ गुजर गए, यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर जो है नहीं लाया जा रहा। लोगों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त जो ख़वातीन हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आज इस ट्रांसफार्मर को कितने दिन हो चुके हैं नहीं लाया गया और क्या मुश्किलात हैं? 7 दिन हो गए ने, यहाँ पे बिजली ख़राब है। बापटा वाले आते हैं, ट्रांसफार्मर लगा के चले जाते हैं, 5 मिनट बाद फिर उड़ जाता है। ये एक इतना छोटा सा ट्रांसफार्मर है, इतना इलाका है जितना साहब कोई नहीं, इतना इसके ऊपर बोझ है कि जितना साहब कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा लोड है, लिहाजा वापटा हमारी नहीं सुन रही। आपने वापटा वालों से बात की है? अभी फैसल साहब को मैंने फ़ोन किया, उसने कहा कि ये मैं मस्जिद में हूँ, ये को कॉल करने का टाइम है, आप सुबह के वक्त कॉल करें। जब हमको तकलीफ़ होगी उसी वक्त कॉल करेंगे ना। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि इन्होंने वापटा वालों से भी बात की है, लेकिन वापटा वाले जो है सुनने को तैयार नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ इलाका मकीन मौजूद से बात किया। आप मुझे बताइएगा कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? 7 दिन हो गए हमारे इधर बत्ती नहीं है, ठीक है। जब भी हम आते हैं कहते हैं, अभी ये रात को आए थे, कह रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर अभी 6 माह तक ख़राब नहीं होएगा, ठीक है। मैंने उसे बोला ये 1 घंटा भी नहीं, इसने इधर लोड ज़्यादा है, इसकी पावर कम है। उन्होंने कहा नहीं बाजी तुम अंदर जाओ, ये हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं, औरतों का काम नहीं है। औरतें कहाँ जाए, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, बूढ़े बीमार हो गए हैं। हाजी साहब रात को अस्पताल लेके हम लोग हैं, किधर जाएं? मस्जिद में पानी पीने, पानी हमारे घर में नहीं है, बच्चे नहीं सो रहे, हम किधर जाएं? ये हमारे साथ तामन ही नहीं कर रहे। अगर हमारे साथ तामन नहीं करेंगे, हम सुबह इनके दफ्तर आएंगे, दफ्तर नहीं सुनेंगे, हम लोग ब्लॉक कर देंगे, हम मरेंगे या खुद को मार देंगे बस। यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि वापडा वाले जो हैं इनकी बात नहीं सुन रहे, और इनका मजीद कहना है कि अगर हमारी जो है बात ना सुनेगी, हम जो मेन GT रोड है उसको भी बंद करेंगे। जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका।
دوسری جانب شہر کی سڑکیں اور گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کہیں پینے کا پانی نایاب تو کہیں سیوریج کے مسائل، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کچا جیل روڈ کی ایک مینار مسجد والی گلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پائپ لائن ڈالنے کے بعد مرمت نہیں کی گئی، 3 ماہ گزر گئے لیکن گلی کی مرمت نہ کی جا سکی۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے گلی مرمت کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ਪੈਪ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ 3 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪੈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਪ ਪਾਤੇ ਤੇ ਸੜਕ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣਾਏ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ 2-2 ਮਣ ਘੱਟਾ ਹੋ ਵੜਿਆ ਪਿਆ। چندرائے روڈ ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار، سڑک کی خستہ حالی سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ سے گرد اڑتی ہے جس سے مکین سانس کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سڑک کو جلد از جلد تعمیر کروا کر ہمیں اس عذاب سے نجات دلائی جائے۔ مرغی خانہ غازی آباد روڈ بھی عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شکایات درج کروا کر تھک جاتے ہیں مگر کوئی داد رسی کرنے نہیں آتا۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ الفیصل ٹاؤن آئی بلاک میں واسا کا فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے سے علاقہ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق فلٹریشن پلانٹ پچھلے 2 ماہ سے خراب ہے۔ شدید گرمی اور ماہ مبارک کے دوران گزارا کرنا مشکل ہو گیا، پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ واسا کے عملے نے بار بار شکایات کرنے کی وجہ سے شکایت کے لیے فلٹریشن پلانٹ پر لکھا فون نمبر تک مٹا دیا ہے۔ محکمہ خزانہ میں اورنج ٹرین کا کرایہ بڑھانے کی سمری زیر غور ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے تمام اعتراضات دور کر کے سمری دوبارہ محکمہ خزانہ کو بھیج دی۔ ایم ڈی مرزا نصیر عنایت کا کہنا ہے کہ ابھی کرایہ بڑھانے کی تجویز پر غور جاری ہے اور ان ٹرین کا کرایہ فاصلے کے مطابق کرنے کی تجویز زیر غور ہے اور ان ٹرین کا فلیٹ ریٹ ختم کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ٹرین کا کرایہ 20 روپے سے شروع ہوگا اور آخری اسٹیشن کا کرایہ 50 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد ان تجاویز کو کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹرانسپورٹ نے تمام اعتراضات دور کر دیے ہیں۔ پی ایچ اے کی غفلت کا احوال بتائیں گے۔ اورنج لائن منصوبے کے لیے خریدی گئی مشینری کا دوسرے مقاصد کے لیے استعمال، گرین ویسٹ سے کھاد بنانے کا منصوبہ بھی آخری سانسیں لینے لگا۔ 75 لاکھ روپے سے خریدے گئے لیف شریڈر کھڑے کھڑے بیکار ہونے لگے۔ پی ایچ اے نے اورنج لائن منصوبے کے لیے 6 واٹر لاریاں جبکہ 10 ٹریکٹر خریدے تھے۔ ذرائع کے مطابق پی ایچ اے نے گزشتہ سال اورنج لائن منصوبے پر خاطر خواہ کام نہ کیا جبکہ واٹر لاریاں اور ٹریکٹر دوسرے منصوبوں اور کاموں پر لگا دیے گئے۔ لیف شریڈرز مختلف سٹورز اور نرسریوں میں کھلے آسمان تلے رکھے گئے ہیں۔ مارکیٹ سے زائد قیمت میں خریدے گئے لیف شریڈرز کا استعمال نہ ہونے سے ناکارہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ حکام کے مطابق پی ایچ اے اس وقت میسر مشینری کے ساتھ اورنج لائن ٹریک کو سرسبز بنانے میں مصروف ہے۔ آگے بڑھیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے صحت کے بجٹ کو 10 کروڑ روپے کا کٹ لگا دیا۔ سرکاری ہسپتالوں میں صحت کی سہولیات کے لیے مختص بجٹ میں سے 10 کروڑ اب سیوریج اور سڑکوں پر خرچ ہوگا۔ رواں مالی سال ہسپتالوں میں صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے مختص بجٹ میں 10 کروڑ روپے کا کٹ لگا دیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے یہ بجٹ سڑکوں اور سیوریج کے منصوبوں پر لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بجٹ براہ راست محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کو دیا جائے گا جو اس بجٹ کو سیوریج اور سڑکوں کی تعمیر پر خرچ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے ایسے تمام منصوبوں کے بجٹ پر نظر ثانی کی جا رہی ہے جو سست روی کا شکار ہیں تاکہ ان کا بہتر استعمال یقینی بنایا جا سکے۔ تعلیم کے شعبے سے بات کریں گے۔ اسکولوں میں 3000 اضافی کلاس رومز بنانے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اضافی کمرے بنانے کی سمری کو مسترد کر دیا۔ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ یہ مختلف منصوبے التوا کا شکار ہونے لگے۔ شہر کے اسکولوں میں 3000 اضافی کلاس رومز بنانے کے لیے 20 کروڑ 40 لاکھ روپے خرچ ہونا تھے۔ اضافی کمروں کے لیے 956 اسکولوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے محکمہ تعلیم کو دسمبر میں سمری بھجوائی تھی۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق دوسرے منصوبوں کی رقم اضافی کلاس رومز بنانے پر خرچ نہیں کی جا سکتی۔ اضافی کلاس رومز بنانے کے لیے بجٹ کی منظوری لینا ہوگی۔ تحریک انصاف کی حکومت میں شروع کیے گئے آفٹر نون اسکولوں کو رواں ماہ کے آخر تک بند کر دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں آفٹر نون اسکول پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ آفٹر نون اسکول پروگرام کے تحت بچوں کو شام کے وقت پڑھایا جاتا تھا۔ اسکولوں میں کمروں کی تعداد کم اور بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث آفٹر نون اسکول پروگرام شروع کیا گیا تھا، جبکہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پنجاب میں 274 اسکول کو بند کر دیا ہے۔ اسکول حکام کا موقف ہے کہ آفٹر نون اسکول پروگرام میں اسکولوں کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی وجہ بچوں کی کم تعداد ہے۔ جن اسکولوں میں بچوں کی تعداد کم ہے ان اسکولوں کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن پنجاب کے حکام کا کہنا ہے کہ آفٹر نون اسکول پروگرام میں آج بھی 2 لاکھ سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
FBR की कार्रवाई का अहवाल बताएं कि अली स्टील मिल्स के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया, तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। तैयार माल दीवार से बाहर निकालने पर मिल इंतजामिया के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। FBR ने प्रोडक्शन के दुरुस्त आदाद शुमार छुपाने पर अली स्टील मिल्स पर टैक्स आयद किया था। अली स्टील एंड रोलिंग मिल्स को 49 करोड़ 50 लाख रुपए की अदम अदायगी पर 14 अप्रैल को सील किया गया था। अब FBR ने रकम की रिकवरी के लिए 9 मुख्तलिफ बैंकों के ब्रांचेस के अकाउंट्स मुंजमद किए हैं। अली स्टील मिल्स की इंतजामिया ने मिल सील होने के बावजूद तैयार माल बाहर निकाला, जिसके बाद FBR ने मनावा थाने में इंतजामिया के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी है। कारपोरेट टैक्स ऑफिस के कमिश्नर तकी कुरैशी की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद इमरान की सरबराही में कार्रवाई की गई। FBR हुकाम के मुताबिक मिल्स को रकम की अदायगी तक सील रखा जाएगा, जबकि अकाउंट्स भी मुकम्मल रिकवरी तक मुंजमद रहेंगे। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने 6 मुजरिमों को सजाए मौत जबकि 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 76 मुलजिमों को 2 साल कैद की सजा सुनाई। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने केस का फैसला सुनाया। मुकदमे की तफ्तीश पुलिस इंस्पेक्टर तारिक महमूद की जानिब से की गई। थ्रेड जारी होने के बावजूद अफसर ने तफ्तीशी अमल जारी रखा। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से तफ्तीशी अफसर के किरदार को सराहा गया। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को कत्ल किया गया था और इस केस का फैसला सुनाया गया है। अदालत ने 6 मुलजिमों को सजाए मौत जबकि 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 76 मुलजिमों को 2 साल कैद की सजा सुना दी। शहर की अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। मेजर हारिस तशद्दुद केस में मुलविस 4 मुलजिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट तसव्वुर इकबाल ने केस की समाअत की। CIA के तफ्तीशी अफसर जहीरुद्दीन ने कहा कि मुलजिमान से आलाए ज़र्ब बरामद करना है, 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने मुलजिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने तशद्दुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने पर सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। चौधरी परवेज इलाही की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमजा शहबाज और राना मशहूद की इमा पर उन पर हमला किया गया। पुलिस दरखास्त पर पर्चा दर्ज नहीं कर रही। अदालत से मुतल्लिका पुलिस को पर्चा दर्ज कराने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ की लाहौर के होटल में महबूस 24 मुनहरिफ अरकान की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने रहनुमा तहरीक इंसाफ सब्तैन खान की दरखास्त पर समाअत की। SP लीगल ने अदालत को बताया कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान से राब्ता हुआ है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कहते हैं उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, वो मर्जी से वहाँ रह रहे हैं, जिस पर अदालत ने दरखास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी। हाई कोर्ट में DG पंजाब ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी डॉक्टर असद असलम की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद अदालत में पेश हुए और दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। अदालत ने दरखास्त में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को फरीक बनाने की इजाजत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी के खिलाफ मेरिट से हटकर 777 अफराद की भर्तियों के रेफरेंस पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत नंबर 6 के जज अजीजुल्लाह कल्लू ने केस पर समाअत की। अदालत ने आसिफ हाशमी की बरियत की दरखास्त पर मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तारीख पर तारीख बाप से बेटियों के खर्चे के केस का 21 साल से फैसला न हो सका। हाई कोर्ट ने एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस तारिक मोहम्मद मिर्जा की जानिब से बीवी और बेटियों को 21 साल से खर्चा न देने के केस पर समाअत एक बार फिर बगैर कार्रवाई 16 मई तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं अताउल्लाह तारड़, मलिक अहमद खान, अवैस लगारी और इरफान दौलताना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि 1 अप्रैल से पंजाब बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। मुस्लिम लीग नून ने नौमुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी न करवाने के हवाले से हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि परवेज इलाही ने अपनी निगरानी में डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद करवाया। ये जो सारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई, इस हवाले से भी कोर्ट को आगाह किया जाएगा। और मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से ये सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई अफसर परवेज इलाही साहब की मोहब्बत में हर गैर कानूनी काम कर जाए और हम खामोश तमाशाई बन के बैठे रहें। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मलिक अहमद खान का कहना था कि ब्लैक यूनिफॉर्म में मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के गुंडों को ऐवान में बुलाया गया। हम पुरतशद्दुद लोग नहीं हैं। हमने कल भी तशद्दुद बर्दाश्त किया है। कल भी डिप्टी स्पीकर पर जब हमला हुआ, जिस किस्म की हलूगिनिज्म हुई, जिस किस्म के आपके लोगों ने वहां पर कंडक्ट किया, आप सब लोग गवाह हैं कि PMLN का रिस्ट्रेंट क्या था। हम अपनी शराफत के साथ, अपनी वज़ादारी के साथ, हम कूल एंड काम के साथ, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस डीरेल ना हो जाए कहीं।
सरदार अवैस लगारी ने कहा, गवर्नर पंजाब ने हल्फ ना लिया तो हमें अदालत इंसाफ फराहम करेगी। पाकिस्तान के आइन के जो हल्फ आपने लिए उसके मुताबिक हमजा शहबाज से हल्फ उठवाएं, वरना अदालत आपके साथ इंशाअल्लाह हमें इंसाफ भी देगी और हम इसकी पैरवी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि हम अदालत से अपील करने जा रहे हैं कि सूबे को हुक्मरानों से दूर करने का किसी को कोई हक नहीं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ उमर असलम। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और फातिह खानी की। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिह खानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक वतन अजीज़ को महफूज रखे और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की अयादत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। साबिक वफाकी वज़ीर मियां हम्माद अज़हर ने चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। साबिक वफाकी वज़ीर मियां हम्माद अज़हर ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर हम्माद अज़हर ने स्पीकर की अयादत की। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से मियां हम्माद अज़हर को पंजाब असम्बली में पेश आने वाले वाक़े से आगाह किया गया। डिप्टी एम्बेसडर यूरोपीय यूनियन सीलर थॉमस ने वफ्द के हमरा शालामार बाग का दौरा किया। सीलर थॉमस का कहना था कि दौरे का मकसद पाकिस्तान की खूबसूरती को देखना है। बिलाशुबा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। डिप्टी एम्बेसडर यूरोपीय यूनियन सीलर थॉमस का कहना था कि लाहौर की हर तारीखी इमारत, बाग, मुख्तलिफ जगहें अपने हुस्न से मुतासिर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद शौक़ था कि लाहौर का दौरा करूं। अभी तक लाहौर की खूबसूरती के बारे में सिर्फ सुना था या फिर तस्वीर में देखा, लेकिन अब लाहौर की खूबसूरती को अपनी आंखों से देख लिया। उन्होंने कहा कि आज अपनी आंखों से देखकर यकीन भी आ गया कि लाहौर सच में बागों और जिंदा दिलान का शहर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा और साबिक काउंसलर शाहीन खान इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शाहीन खान मरहूम की नमाज जनाजा सब्जाजार जमील टाउन एश ब्लॉक पार्क में अदा की गई। नमाज जनाजा में मेहर वाजिद अजीम, मोहम्मद अली खान, सईद अली, लुकमान खान, अबू बकर खान और उमैर खान ने शिरकत की। अब्दुल हमीद, बहार खान, खादिम हुसैन नंबरदार, अब्दुल्ला, मलिक आरिफ और काशिफ न्याज समेत दीगर शख्सियात और शहरियों ने शिरकत की। रॉयल पाम एंड कंट्री क्लब में फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मरकजी कायदीन के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। बिजनेस कम्युनिटी की मारूफ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। रॉयल पाम में मुनक़िदा इफ्तार डिनर की तकरीब में सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख, रीजनल चेयरमैन नदीम कुरैशी, साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर मियां अंजुम निसार और साबिक वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक शरीक हुए। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल पंजाब ख्वाजा शाहज़ीब अकरम, चेयरमैन लाहौर तनवीर अहमद शेख, चेयरमैन प्याफ फ़हीमुर रहमान सहगल और साबिक चेयरमैन एपा बाव मोहम्मद बशीर ने शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी आमिर रफ़ीक कुरैशी, कोऑर्डिनेटर फेडरेशन चैम्बर मोहम्मद अली, साबिक चेयरमैन अदनान बट, आगा इफ्तिखार और लाला यासिर नसीर भी मौजूद थे। ज़ीशान सुहेल मलिक, सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद, सजाद अफजल, नईम हनीफ, अरशद भट्टी, सदर ऑटो एयर कंडीशनिंग एसोसिएशन नदीम मलिक और मोहम्मद नदीम समेत दीगर कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। ईद करीब आते ही तैयारियां उरूस पर पहुंच जाती हैं। ईद के लिए नए कपड़ों की खरीदारी अव्वलीन मरहला होता है, मगर दर्जियों के नखरे भी आसमान से बातें करने लगते हैं। टेलर मार्केट की सूरत हाल इस रिपोर्ट में देखिए। ईद फरोज से शॉपिंग करते नजर आते हैं। कोई सिले सिलाई कपड़े ले लेता है तो कोई मनपसंद कपड़े सिलवा लेता है। ईद के 15वें दिन से ही दर्जी शहरियों से कपड़े की बुकिंग लेना बंद कर देते हैं और शहरी गिला करते नजर आते हैं। अगर दर्जी गाहक की मिन्नत समाजत करने पर कपड़े ले भी लें तो मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं। दर्जी वगैरह हैं, उन्होंने बुकिंग वगैरह बंद कर दी है, तो इसलिए मैं सूट नहीं स्टिच कर रहे हैं। वो पकड़े बुकिंग के लिए, वो पकड़ नहीं रहे हमारे सूट। दर्जी के मुताबिक कपड़े की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है जिसको ईद तक पूरा करना होता है, इसलिए 15 दिन पहले ही बुकिंग बंद कर देते हैं। पहले रोज़े में बुकिंग बंद हो गई है तो काफ़ी ज़्यादा इधर लड़कियां हैं, वो उन्होंने पहले ही बुकिंग करवा के बंद कर दी हुई है। तो जो पुराने कस्टमर सिर्फ उनके पकड़ रहे हैं, हम नए कस्टमर की बुकिंग बंद कर दी हुई है।
ईद पर नए कपड़े ईद का मजा दुबाला कर देते हैं, मगर इन अयाम में दर्जियों के नखरे भी आसमान से बातें करते हैं। यही वजह है कि शहरी रमजान शुरू होते ही ईद के कपड़े सिलवाने के लिए निकल पड़ते हैं। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। रोसा बिलांका गोल्फ एंड कंट्री क्लब में शहर रमज़ान फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। क्लब में सऊदी अरब पेविलियन का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी पेविलियन में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल नस्ब किया गया। शहर रमज़ान में सऊदी पवेलियन में सऊदी अरब की तारीख की अक्कास इमारात के मॉडल नस्ब किए गए हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात पवेलियन में बुर्ज खलीफा, पाकिस्तान पवेलियन में फैसल मस्जिद और तुर्क पवेलियन में ब्लू मॉस्क का मॉडल नस्ब किया गया है। शहर रमजान फेस्टिवल का इनेकाद CEO रोसा बिलांका क्लब शहबाज मुनीर की जानिब से किया गया। इस मौके पर शहबाज मुनीर का कहना था कि माह रमजान में शहरियों की तफरीह के लिए शहर रमजान फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। तो सबको रमजान मुबारक। एक छोटी सी काविश की है कि हमने 4 कंट्रीज जो कि चारों इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके कल्चर को शो करना चाहा है। बच्चों के लिए अलादीन ड्रामा भी पेश किया जा रहा है, जबकि फेस्टिवल में रवायती अरबी रक्स तनबूरा भी पेश किया जाता है। फेस्टिवल के पहले रोज किरात और नात के मुकाबले और मिलाद का भी एहतमाम किया गया, जबकि पाकिस्तान पवेलियन में कवाली एंड सूफी नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर कवाल आसिफ अली संतू खान ने अपने फन का मुजाहिरा करके शुरका से दाद वसूल की। शहर रमजान फेस्टिवल के पहले रोज कुरान अंदाजी के जरिए 4 उम्रा टिकट भी निकाले गए। फेस्टिवल के शुरका के लिए सहरी का इंतजाम भी किया जाता है। फेस्टिवल के लिए जारी करदा पासपोर्ट टिकट चांद रात तक के लिए कारआमद है। बच्चों की फेस्टिवल में एंट्री फ्री है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उस्मान खादिम कंबो के साथ महर अली अकबर, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।